السلام علیکم پیارے ناظرین، پیارے بھائی بہن، پیارے دوست، پیارے درشک۔ آج میں آپ کو بزرگوں اور نبیوں کی کرامت اور معجزہ یعنی کرشمہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ بزرگوں یا نبیوں سے کرامت کیسے ہوتی تھی، چمتکار کیسے ہوتا تھا، معجزہ کیسے ہوتا تھا۔ دیکھیے، معجزہ عربی میں بولتے ہیں، اپنے لینگویج میں اردو ہندی میں چمتکار اور کرامت اور کرشمہ یہ تینوں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ معنی ایک ہی ہے، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے نبی اور ولی کے بیچ میں جو چمتکار ہوتا ہے اس کو فرق کرنے کے لیے کچھ عالموں نے نبی کے لیے معجزہ اور جو نبی نہیں ہے ان کے لیے کرامت، لیکن ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی کہ جو عقل کو انسان کے حیران کر دے، سوچنے پر مجبور کر دے، جس کا کوئی پروسیس اور کوئی کارن دکھائی نہیں دے، وہی کرامت ہے، جس کا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئے۔ تو چلیے، میں اس ڈیٹیل میں بتانے سے پہلے میں اپنی ایک چھوٹی سی تعارف کرا دوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ میرا پہلا ویڈیو ہو۔ تو مجھے لوگ عامل بابا کہتے ہیں۔ میں 2001 سے اس لائن میں باضابطہ قدم رکھا تھا، لگ بھگ 22-23 سال ہو گئے ہیں۔ میں مظفر پور کا رہنے والا ہوں، یہ بہار اسٹیٹ میں ہے اور انڈیا دیش میں ہے۔ میں نے قریب 120 سے زیادہ چلے اور عملیات کیے ہیں، وظائف کیے ہیں، جس میں سے قریب سمجھے 20 سے 30 کے بیچ میں لگ بھگ میرا یہ عمل سب فیل ہوا ہے، جس میں کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اور آج کے ڈیٹ میں لگ بھگ 150 سے زیادہ، یعنی چھوٹے بڑے سب روحانی لشکر ہیں جو اللہ کے حکم سے میرا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی تعارف ہے۔ چلیے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ کرامت ہوتا کیسے ہے، کیا وجہ ہے، اس کا کیا پروسیس ہے کہ آپ سے بھی کرامت ہو سکتا ہے، آپ بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس مقام پر پہنچ کر کوئی نبی، کوئی ولی سے کرامت سرزد ہوتی تھی۔ اختیاری بھی ہوتا ہے اور بنا اختیاری بھی ہوتا ہے، لیکن میں ابھی بات تو کروں گا سب پہ، لیکن آپ کو راستہ بتاؤں گا اختیاری کا، جس پہ آپ کا اختیار ہوگا۔ ٹھیک؟ ہاں، تو میرے دوست، چلیے اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا معجزہ کا، کرامت کا۔ تو چلیے ہم پہلے نبی سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، نبیوں میں کرامت اور چمتکار کے معاملے میں 3 نبی بہت زیادہ مشہور ہے، قرآن میں ان کا بہت بار ذکر آیا ہے۔ اس میں سے موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ان کا قرآن میں بہت ذکر ہے کرامت معجزہ کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ ملا، اس میں پرسنلی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اس کے لیے عمل یا کچھ کوشش یا وظائف نہیں کرنا پڑا تھا۔ قرآن پڑھنے سے اور ان کا پورا ہسٹری پڑھنے سے یہی پتہ چلتا ہے، بلکہ اللہ کا پہلے سے یہ ایک پلاننگ تھا کہ موسیٰ کو ایسے ایسے پیغمبر بنانا ہے اور ایسے ایسے مقام دینا ہے۔ یہ پہلے سے ہی سوچی سمجھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، اور جو عمل میں آیا۔
हाँ, बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की जो चमत्कार जो शुरू में मिला था, अल्लाह ताला से जो पहली दफा जो बात हुई थी, उसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि ए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो मूसा ने कहा कि लाठी है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा करो कि इसको जमीन पे रख दो। जमीन पे रख दिया तो वो सांप हो गया। अब सांप होके बहुत मोटा और ऐरने लगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम डर से भागने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, मेरे नबी डरा नहीं करते हैं, सो छोड़ो डर को और उसको पकड़ लो। जैसे तुम पकड़ोगे फिर से वो लाठी हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम डरते डरते पीछे से दुम की तरफ से पकड़ा, बस फिर से वो लाठी हो गया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस निशानी को लेकर तुम फिरौन के पास जाओ और फिरौन को ये पेश करना और उसके साथ नरमी से बात करना, शायद वो ईमान ले आए। ठीक उसी तरह से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसी दौरान जब पहली बात अल्लाह ताला से जब बात हुई थी, तो उस वक्त कहा था ये जो अपना जो बाजू है इसको समेटो इस आस्तीन को। जब समेटा तो ये पूरा ट्यूबलाइट जैसे भी जलता है आपका रोशनी वाला, है ना, तो उसी तरह से ट्यूबलाइट में जितनी रोशनी होती है लगभग उससे ज़्यादा रोशनी थी। वो रोशनी पूरा का पूरा जब इसको समेटा तो ये पूरा का पूरा ये इसमें से ट्यूबलाइट की तरह रोशनी निकलने लगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ, ये दो निशानी है, फिलहाल इसको लेकर फिरौन के पास। तो देखिए, ये जो दो चमत्कार जो मिला था मूसा अलैहिस्सलाम को, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की कोई कोशिश को कोई दखल नहीं था। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट था। तो इससे बात समझ में आ गई कि नबी को, कुछ नबियों को डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मिलता था, जिसमें उनकी कोशिश को, इरादे को कोई दखल नहीं था। ये एक मिसाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरा मिसाल समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला था, उस वक्त उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, यानी अल्लाह मेरी हिफाजत के लिए काफ़ी है। बस वो अपने यकीन को ये कहा था, और हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, हस्बी अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कहा था वो कहा था हस्बी अल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। तो ये उनका यकीन था अल्लाह पर, जिसकी वजह से आग में डालने के बावजूद उनको कुछ भी नहीं हुआ, आग उन पे कोई असर नहीं दिखाया। और यही बात नमरूद की बेटी ने जब देखा तो ईमान ले आई। तो ये नमरूद और शद्दाद की अलग ही कहानी है जो आप कुरान में पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये जो यहाँ पे जो मुअज्जा हुआ, इस मुअज्जा में नबी के सिर्फ यकीन को दखल है, अल्लाह पर जो उनका यकीन है इसी के वजह से उनके साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मामला है कि माने यकीन के साथ, कि यकीन जो अल्लाह पर है मेरा बना हुआ, आपका बना हुआ, उसकी वजह से जो आपके साथ चमत्कार होता है, वो ये चमत्कार बिल्कुल आम है। ये किसी के साथ जो यकीन वाला है, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला है, कोई भी मोमिन है, कोई भी ईमान वाला है, उसके साथ ये होता रहता है और क़यामत तक होता रहेगा। इसके लिए बहुत इल्म की ज़रूरत नहीं है, मुजाहिदे की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस बंदे का अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। अब हर जगह भरोसे का अलग अलग हिसाब किताब है, तो भरोसा, सबर,
ये जो चीजें हैं ये बंदे का अल्लाह के साथ जो ऐसा होगा उसके हिसाब से ये करामत होता रहता है। तो जितना तगड़ा होगा, जितनी मजबूत होगी यकीन, उतना ही ज्यादा वो चमत्कार जिंदगी में घटता रहता है, होता रहता है। ये भी मुअज्जह है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम पे। देखिए ईसा अलैहिस्सलाम जो कुछ दिखाते थे और करते थे, पहली बात कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश खुद चमत्कार है, क्योंकि बिना बाप के पैदा हुए हैं। अब ये बातें साइंस को या बाकी लोगों के समझ में नहीं आती है, तो बहुत से लोग इसको मानने से इनकार कर देता है। वो इसीलिए मानने से इनकार कर देता है कि वो हर चीज में वही सिस्टम तलाशता है जो वो जानता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कुदरत के पास और भी सिस्टम है जो छुपा हुआ है। अब मान के चलिए कि आज के 200 साल पहले आप चले जाइए, ठीक है, जब न टेलीफोन था, न मोबाइल था, न इंटरनेट था, न हवाई जहाज था, न ये मोटरसाइकिल था, न ये बसें थी, कुछ भी आज के 200 साल पहले नहीं था। ठीक है, तो अब ये बताइए कि आज के 200 साल पहले के लोगों से अगर ये बात की जाती कि इस तरह का इंटरनेट के बारे में कि दुनिया का हर चीज उस पर लिख दिया जाएगा और लोहे महफूज की तरह होगा वो, मतलब कि वो ऐसे दिखाई नहीं देगा जब तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, सैटेलाइट ऊपर से वो चलेगा, उसका कनेक्शन होगा, इस तरह की चीजें जब उसको बताया जाता तो सिवाय एक बात के कि ये इम्पॉसिबल है या तुम जो है वो पागल हो, तुम पागल हो, दूसरे को भी पागल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर उससे कहा जाता कि ऐसा एक टूल एक मोबाइल के शक्ल में आएगा आज के 200 साल के बाद, जो दुनिया में कहीं भी इंसान रहेगा उससे वो बातें करेगा, उसका फोटो देखेगा, आज जो खत लिखते हो जो जाने में महीनों लगता है तुम्हारे आदमी के पास, उस वक्त यहां से लिखेगा वहां तुरंत पहुंच जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि वो मान लेता? कभी नहीं मानता। उस वक्त वो भी पागल का ही लक़ब देता। ठीक, तो कहने का मतलब हवाई जहाज का भी वही मामला है कि भाई हवा में ऐसी चीजें, माने ऐसा होगा कि 500-500 हजार आदमी को लेकर वो उड़ेगा हवा में और एक देश से दूसरे देश में घंटों में पहुंच जाएगा। अगर बताया जाता तो उसको भी यकीन नहीं होता। जिस जमाने में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था उस जमाने में भी जो लोग जाने थे वो मजाक उड़ाए थे राइट ब्रदर्स का या उनसे पहले वाले का, जो अधूरा, राइट ब्रदर्स के पहले भी एक आविष्कार किया था हवाई जहाज का जो सक्सेस नहीं हुआ था, बस राइट ब्रदर्स ने जो उसमें कमी रह गई थी उसको पूरा करके ये उड़ा दिया। तो क्या समझ में आया आपको कि साइंस में भी जो चीजें आविष्कार हो चुकी है सो हो चुकी है, जब नहीं हुई थी तो साइंसदां में ही माने उस पर बिलीव नहीं करते थे, साइंस वाले लोग ही बिलीव नहीं करते थे, अकल वाले लोग ही बिलीव नहीं करते थे, लेकिन किसी ने उसको खोज निकाला, साबित कर दिया, तो अब दुनिया के लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मान रहे हैं। इस्तेमाल कर रहे इसलिए मान रहे हैं तो ये मानना नहीं है जनाब, वो तो आप इस्तेमाल करिए रहे हो, तब में मानने या न मानने का कौन सबूत है? मानना या न मानना तो तब है जब उसका खोज नहीं हुआ, जब वो चीजें आम नहीं हुई है, तब मानना न मानना है। जैसे क़यामत के दिन कुरान में है कि सबको ईमान वाला हो जाएगा, जैसे अल्लाह की आवाज आएगी, ठीक है, फरिश्ता सबके पास आएगा, जब वो देखेगा फरिश्ता को अपनी आंखों से देखेगा, जन्नत को भी अपनी आंखों से देखेगा, जहन्नम को भी देखेगा, स्वर्ग को भी देखेगा, नर को भी देखेगा, तब क्या होगा? उस वक्त सब ईमान वाला होगा, कहेगा कि मैं अपने प्रभु को, अपने रब को मानता हूं, तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, ईमान वाला तो वही होगा जो दुनिया से ईमान वाला बनकर आया था, इसको देखने के बाद मानने का नाम ईमान नहीं होगा। तो अब लोग बोलेगा
जो लोग ईमान लेकर नहीं गए थे दुनिया से, तो अब वो बोलेगा कि या अल्लाह या रब मुझे दुनिया में फिर से भेज दे कि ताकि मैं ईमान वाला बनकर तेरी इबादत करूं और दुनिया से कट के और दुनिया के शैतानी फेल फितरत से अलग हटकर सिर्फ तेरी फर्मा बरदारी करूंगा। तो रब कहेगा कि अब वो वक्त खत्म हो गया है, अब इसके बाद नई जिंदगी शुरू होने वाली है, अब वो सब कुछ तो होने वाला नहीं है। लेकिन एक लाइन और कहेगा कि अगर हम दुनिया में तुमको फिर से भेज दें तो फिर तुम वही काम करोगे जो तुम करते आए हो। बहरहाल दुनिया में तो भेजा जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक उसी तरीके से ये सिस्टम से मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। देखिए, जैसे कि जो चीजें साइंस में ने उसको प्रूफ कर चुका है और अमल में आ चुका है, तो दुनिया उसको मान रही है, तो उसको मानना नहीं करते हैं ना। मानना क्या मानना, अरे जिसको तुम यार देख रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसको मानना थोड़ी कहा जाता है। मानना उसको कहा जाता है जिसको तुम देखते नहीं हो लेकिन उसका वजूद है। जैसे मान लो कि साइंस ने प्रूव कर चुका है कि चांद पे बहुत कुछ है, मिट्टी है, लोग गया है ना, बहुत कुछ है, लोग आता जाता रहता है, तो ये चीजें तुम कर नहीं सकते हो। यहां पे मानने का मामला आ सकता है, इसको मानना कर सकते हो। साइंस प्रूफ तो किया लेकिन आ रहा जा रहा है, लेकिन ये लिमिट में है, कुछ ही लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए नहीं है, आम नहीं है। इसीलिए तुम्हारे लिए हमारे लिए ये मानने की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन जो चीजें आम हो गई उसके मानने का कोई मतलब भी नहीं बनता। ठीक उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो भी सिस्टम से ही है, ठीक है, लेकिन वो अल्लाह का एक खुफिया सिस्टम है। उसको अल्लाह ताला माने इस्तेमाल कभी कभी करता है अपने हिसाब से, उसको आम अल्लाह ताला ने नहीं बनाया है। जो बाकी सिस्टम है जो आम है, तो आम सिस्टम को देख के लोग समझता है कि ये सिस्टम है, उसके बाद तो हो नहीं सकता है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे बहुत लोग एतराज करते हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम यकीनन बिना शक शुबा के बिना बाप के पैदा हुए थे, है ना। जिब्रील अमीन जो फरिश्ता है, वो फरिश्ता आया था मरियम के पास और मरियम से कहा, ईसा की माँ से, कि ये मरियम, अल्लाह तुम्हें एक बेटा देगा जो इस तो जिब्रील अमीन ने मरियम से कहा कि है मरियम, अल्लाह तुम्हें एक बेटा देगा जो दुनिया में बहुत नाम करेगा, बहुत नेक होगा, उसके दुआ से बहुत मरीजों को शिफा मिलेगी, जो काफिर हैं उसको ईमान मिलेगा और जो बीमार हैं उसको शिफा मिलेगी। तो मरियम ने कहा कि मुझे तो किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, छुआ तक नहीं है, फिर मुझे बच्चा कैसे होगा, कुरान में है। तो जिब्रील ने कहा कि तेरा रब जो चाहता है सो करता है, तेरे रब के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है। और फिर कहा मुंह खोलो, मुंह खोला तो उसमें एक फूंक मार दिया, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पानी में फूंक मारते हैं, उसी तरह से जिब्रील ने फूंक मार दिया, चला गया। जिस तरह से जब हमल ठहर जाता है, गर्भ ठहरता है, और जो कैफियत होती है, जो टाइमिंग के हिसाब से सिस्टम से, बस उसके बाद वैसे ही होने लगा। फिर जब बच्चा हो गया, क्योंकि अब बच्चा जब होने का मामला था तो मरियम जंगल में चली गई थी, बगल में ही जंगल था। वहां से जब वो आई तो हाँ, तो वहां जब अल्लाह ताला से बातचीत हुई मरियम की, मरियम ने कहा कि मैं इस बच्चे को जब लेके जाऊंगा और लोग इसके बाप के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। कहेगा कि ये जब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारे पास ये बच्चा कैसे हुआ।
تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو کچھ بولنا نہیں ہے، تم کو چپ رہنا ہے، صرف اشارے سے بات کرنی ہے۔ تم کو اشارے سے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، باقی سارا جواب بچہ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو مریم اسی طرح سے وہاں سے بچے کو لے کے آتی ہے اپنے سماج میں۔ وہاں سماج والے یہی سوال کرتے ہیں کہ مریم تمہارا باپ بہت نیک تھا، تمہاری ماں بھی بہت نیک تھی، تو پھر یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ تم کیسے یہ برا فیل کر لی؟ تو اسی پہ مریم نے اشارہ سے بچے کی طرف کہا کہ اسی سے پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ جو 1 دن کا بچہ ہے وہ جواب کیا دے گا؟ تو بچے نے جواب دیا، کہا بچے نے کہ اے لوگوں، میرا نام عیسیٰ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دیا ہے، مجھے رسول بنایا ہے، مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور اپنے ماں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور یہ میری ماں بالکل پاک ہے، اس نے کوئی برا فعل نہیں کیا ہے۔ اتنی بات وہ بچہ جب بولتا ہے یقیناً لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بھی اس دور میں سائنس کا تو دور نہیں تھا، چمتکار پر لوگوں کو ایسے بھی بھروسہ تھا، تو یقین ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ تو اپنے آپ میں خود چمتکار ہے، ٹھیک ہے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چمتکار ہوتا ہی رہتا ہے، ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ بچپن میں ہی جب وہ 10-12 سال کے ہوتے ہیں یا اس کے بعد بھی، تو وہ مٹی کا چڑیا بناتے ہیں، چڑیا بنا کر اور اس کے بعد اس میں پھونک مارتے ہیں، پھونک مارا، کہا اللہ کے حکم سے اڑ جا، بس وہ اڑ جاتا تھا، اس میں جان آ گیا، وہ اڑ گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام جب سیانے ہوئے، بڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دعائیں سکھائی، اور جس کی وجہ سے وہ دعا کا عمل کیے۔ وہ سیکرٹ عمل ہے، یہ اس کو مل سکتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے بات چیت کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے جب اس کی بات چیت ہونے لگے گی، تو جب وہ اللہ سے وہ دعا مانگے گا، اب بندہ اخلاص والا ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا اس کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ میں نے وہ دعا تو نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے، میری بات تو ہوئی ہے، کئی بار ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک دو بار نہیں ہوئی ہے، کئی بار ہوئی ہے۔ تو میں نے وہ دعا نہیں مانگا کیونکہ میں اپنی سمجھ سے، میری سمجھ میں آیا کہ اس سے ہم مانگیں گے تو یہ چیز ہم کو مل جائے گا، تو اس دعا سے میں نے خود مانگا، اور کچھ چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی چیزیں، پوری چیزیں تو نہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی چیزیں اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، صرف اس کا حکم نہیں ہوا، یعنی کہ کب سے سٹارٹ کرنا ہے، آدھی چیزیں، یعنی جس کا تعلق شفا سے ہے، ایسے سمجھیے، میں کلیئر بتا دیتا ہوں، بیماری سے ہے۔ اب مجھے وہی چاہیے تھا، باقی مجھے کوئی عیسیٰ تو بننا نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ کوئی بن بھی نہیں سکتا ہے، کوئی موسیٰ بن نہیں سکتا ہے، کوئی محمد بن نہیں سکتا ہے، جو ہے وہ وہی رہے گا۔ تو اسی لیے کسی کی نقل کرنے کے لیے اور کسی کا ہو بہو ہونا اچھی بات نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے، ٹھیک؟ اللہ کی بھی چاہت ایسی نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو الگ الگ بنایا ہے اور الگ الگ علم سے نوازا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ علم ملے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ کو مل سکتا ہے ڈائریکٹ کر کے، اس سے وہ یہ ہوگا کہ جو عیسیٰ کو ملا سیم وہی دعا آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر وہی چمتکار چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے تو، اور باقی صرف اگر شفا کا حصہ چاہیے
कि सिर्फ शिफा, आपको दस्ते शिफा मिले, जिसको चाहे जैसा बीमारी हो आप ठीक कर दें अल्लाह के हुक्म से, तो आप सूरह फातिहा का मैं अमल बता चुका हूँ, उसको अगर आप करें तो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी अगर डायरेक्ट अल्लाह से बात नहीं हुई है अगर आपकी, लेकिन अगर रूहानी सफ़र आपका मुकम्मल हो चुका है, कल्ब आपका अल्लाह का जाकिर हो चुका है, नफ्स आपका पाक हो चुका है, तभी जाके वो अमल करेंगे तो होगा। उसके पहले करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बेकार में आपका वक्त बर्बाद होगा, लास्ट में आप छोड़ भी देंगे, उसको हमको पता है, क्योंकि ऐसे लोगों से वो चीज़ हो ही नहीं सकता है। उसके लिए नफ्स की पाकीज़गी ज़रूरी है। बहरहाल, तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपको ये चीज़ बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम वो अमल किया, दुआ, और फिर उनके पावर में और इजाफा हो गया। पहले से जो बचपन से था सो था, और उसकी वजह से एक फरिश्ता तो कंटिन्यू उनके साथ रहता था। कुरान ने एक जगह इशारा किया उसके बारे में, पकड़ने वाले पकड़ते हैं, जो ना पकड़े वो अनारी है। वो फरिश्ता कंटिन्यू उनके साथ रहता था। ईसा अलैहिस्सलाम मुंह से बोले, बस वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से वो काम को कर देता था। ईसा अलैहिस्सलाम ये भी बताते थे कि तुम खाना क्या खा के आए हो, घर में क्या छुपाए हुए हो, पास में क्या छुपाए हो, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। ये सब कुछ उनके साथ जो एक फरिश्ता था, वो रिपोर्टर था, वो सारी ताकत से करता था। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जो कुछ भी करते थे अल्लाह के हुक्म से करते थे। ये हुक्म अल्लाह का था, जबान इनकी थी मगर कलाम अल्लाह का था। तो चलिए, एक मौज़ा, एक करामत ईसा अलैहिस्सलाम का मैंने आपको बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को दोनों चीज़ मिला था। मतलब ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम को बचपने से तो मिला ही था, साथ में ईसा अलैहिस्सलाम को इख्तियारी चीज़ मिला था। वो इख्तियारी था उनका, जब चाहे जो चाहे करते थे। यहां तक कि मुर्दा को जिंदा कर देते थे। अब इससे बड़ी करामत क्या चाहिए जनाब, ठीक है। यही वजह है कि उसका साइड इफेक्ट ईसाइयों पर पड़ गया कि ईसाइयों के एक बड़े ग्रुप ने क्या किया कि वो अल्लाह से मोहब्बत करने के बजाय, अल्लाह से मदद मांगने के बजाय, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार गलत तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम से करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम को कोई खुदा मानने लगा, तो कोई उन रब का, अल्लाह का बेटा मानने लगा। ये दोनों गलत थे। न वो रब के बेटे हैं, न वो रब हैं, न वो अल्लाह है। बस वो अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह ने उनको ऐसी सलाहियत, पावर दिया था ये अपनी खुदाई जाहिर करने के लिए। अल्लाह ने अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए, जब इंसान दुनिया में जो चीजें मिली हुई है उसको समझता है कि वो ऑटोमेटिक है, अपने आप है, उससे बहुत सारे इंसान को, सबको तो नहीं लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जिनको ये समझ में आता, मुझको खुदा के वजूद का या तो अहमियत होता है या बहुत कम होता है, या किसी को नहीं होता है। उसको लगता है ये दुनिया अपने आप चल रही है। तो कभी कभी अल्लाह ताला को जब मन करता है, जब मन किया और जब मन करेगा, तो अपनी कुदरत को, अपनी पावर को एक्स्ट्रा तरीके से जाहिर करने के लिए, ऐसे तो सारी पावर उसी की है, लेकिन एक्स्ट्रा तौर पे जाहिर करने के लिए, चूंकि कुछ बंदे की तलब होती है ऐसा कि जब उसको एक्स्ट्रा कुछ किया जाएगा तब वो खुदा को मानेगा, तब खुदा के वजूद को मानेगा, और जो मान रहा है उसका यकीन और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को इस तरह की चीजें, मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह की चीजें दी गई थी कि उसको देखकर जो यकीन वाला है उसका यकीन और पुख्ता हो जाए, मजबूत हो जाए, और जो यकीन वाला नहीं है वो यकीन करने लगे। आज जो बदनसीब है वो तो बदनसीबे रहेगा कि उसको जो कुछ दिखा दीजिए वो कभी नहीं मानेगा। बस उसने कसमें खा लिया कि हम मानेंगे ही नहीं, तो मत मान भैया, तुम्हारा ठिकाना जहां है वहां तुम चले जाओगे, फिर वहां मानते रहोगे, फिर अपना सारा सबूत वहां देते रहोगे, फाइल जो है इकट्ठा करके रखोगे। बहरहाल, तो पैगंबर यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपको बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम न तो खुदा है न खुदा के बेटे हैं,
صرف پیغمبر ہے، رسول ہے، بس اللہ کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک بندے کو چنتا ہے، خاص کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر وہ اپنا علم، اپنا میسج اس پر اتارتا ہے، اس کو دیتا ہے، اور پھر اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس کو پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ عادت ہے اس کی، یہ اس کا قانون ہے۔ قرآن میں ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ فرشتہ میرے پاس آئے، خدا ہم سے بات کرے، خدا ہم کو حکم کرے ڈائریکٹ، تو یہ اللہ کے دستور میں نہیں ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرے گا، چاہے تم اللہ کو مانو چاہے اللہ کو نہیں مانو۔ مانو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ اللہ کا کچھ نہ فائدہ پہنچنے جا رہا ہے، نہ اللہ کا کوئی نقصان پہنچنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی تو صرف جب کسی بندے پہ ایکسٹرا رحم کرنا چاہتا ہے، دیا کرنا چاہتا ہے، اپنی سمپیتی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو جا کے وہ اس طرح کے بندے کو اس دور میں اتارتا ہے اور اس طرح کا علم اس تک پہنچاتا ہے۔ یہ اس کی ایکسٹرا نوازش ہے، وہ انعام اکرام ہے اس کا ایکسٹرا، جس کو اس نے چاہ لیا ہے کہ اس کو ہم جنت میں داخل کریں گے تو، اور اس کو اپنی نعمت زیادہ دیں گے، تو اس کے ساتھ ایسا وہ کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ بندہ جس پہ اس کا انعام و اکرام ہوتا ہے، ایک کوالٹی اس کے اندر میں ضرور ہوتی ہے کہ چاہے وہ جتنا برا ہو لیکن وہ سچا ہوگا اور دل کا بڑی بھولا ہوگا۔ یہ بھولاپن اور یہ سچائی اس آدمی کے اندر میں ہوتی ہے، اس انسان کے اندر میں، جس کی وجہ سے باقی جو برائی ہوتی ہے اس کے جانے کا امکان ہوتا ہے، اور اس کے ختم ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور ہو بھی جاتا ہے۔ جب اس تک حق بات پہنچائی جاتی ہے تو وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے، اور اس کی برائی جو اس کے اوپر سے ہوتی ہے، جو لیبل کے طور پہ چڑھی ہوتی ہے، وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ پوری طرح سے نیک ہو بھی جاتا ہے۔ تو کچھ صفت ہوتی ہے اس بندے کے اندر میں، اچھی صفت۔ تو پیغمبر کا جو معاملہ اس طرح سے رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ اختیاری رہا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو ایک لائن اور بتا دیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے سے پہلے جب یہودی کے کچھ پنڈا لوگ، مولوی لوگ جب ان کے خلاف میں آ گئے، کیوں خلاف میں آئے تھے؟ کیونکہ یہ جو چمتکار دکھاتے تھے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو چمتکار دکھا کے باقی سارے یہودیوں کو اپنی طرف کر لے گا، تو ہماری پوجا کون کرے گا، ہم کو کون پوچھے گا، ہم نیاز، فاتحہ اور چالیسواں اور باقی ساری چیزیں جو اس کو ڈرا دھمکا کے جو پیسہ کماتے ہیں طرح طرح سے، وہ کیسے کمائیں گے؟ اس طرح سے یعنی جو کرمکان کرتا تھا۔ آپ فاتحہ خانی والے برا نہیں مانیے گا، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہودی لوگ بھی کرمکان بہت طرح کے کرتے تھے، لیکن ہم نے اس طرح سے اس لیے بتایا کہ یہ سمجھ میں آئے گا مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسلام نہیں ہے نا۔ اسلام جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا کرنے سے نیکی ملے گا اور کیا کرنے سے گناہ ملے گا، یہ اکثر مسلمانوں کو پتا ہے، شاید کسی کو نہیں پتا ہو مگر سب کو پتا ہے۔ تو وہ یہودی دشمن ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ مسیح کے۔ تو اس میں سے وہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ روم کا تھا، تو اس کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کیا، پھر یہ چاہا کہ اس کو مار دیا جائے، نہیں تو یہ اس سے تو یہودیت ختم ہو جائے گی، ہے نا، سارا یہودی ختم ہو جائے گا، سب کنورٹ ہو جائے گا، ان کا شاگرد بن جائے گا، ان کا امتی بن جائے گا۔ تب اس نے ایک سازش رچی روم کے بادشاہ سے مل کے، ٹھیک ہے، کہا کہ یہ تو بادشاہ بننا چاہتا ہے، اگر اس کو آپ نہیں روکیے گا تو ایک دن آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا اور یہ بادشاہ بن جائے گا۔ اب وہاں اس طرح سے برگلایا، پھر اس نے پہلے تو انکار کیا، کہا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ کہتے ہو
तो चलो तुम्हारे कहने पे अमल करते हैं। तो बहरहाल तो रोम के मैंने बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा था इनको गिरफ्तार करने के लिए। ये पहले खाना खा रहे थे तो इनके जो 12 शागिर्द थे जो खास थे, उसमें से तो इन्होंने कहा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने, कि देखो इसमें से एक शागिर्द मेरा ऐसा है जो मुझे पकड़वाएगा बादशाह के सिपाहियों के हाथ। तो बाकी शागिर्दों ने कहा कि आप उसका नाम अगर बता दें तो अभी उसका काम तमाम कर देंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरे रब को ऐसा ही मंजूर है, ऐसा ही उसने लिखा है, ऐसा उसकी मर्जी है, ऐसा होगा ही, इसलिए नाम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ इतना बता दें कि अच्छा होता उसके लिए कि वो पैदा ही नहीं हुआ होता। वो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कि इस गुनाह के सबब वो ऐसी जहन्नम में वो जलेगा लाइफ टाइम के लिए, है ना। गुनाह तो एक बार किया यहाँ, लेकिन सजा उसको उम्र भर मिलेगी, यानी कभी खत्म नहीं होने वाली सजा में वो गिरफ्तार होगा। वो ईसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे, इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने उस पर रहम खाकर ऐसा कहा। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा ही होता है कि वो एक यहूदा नाम का इंसान होता है जो उनका शागिर्द होता है, वही सिपाही को खबर देता है, कुछ पैसे की लालच में, यहूदियों के कुछ पैसे की लालच में आ जाता है और वही खबर देता है। और वो यहूदी का आलिम भी होता है उस ज़माने का, और वही खबर भी देता है कुछ पैसे लेकर कि ईसा अलैहिस्सलाम फलां जगह छुपे हुए हैं, और इस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम गिरफ्तार होते हैं। चलिए ईसा अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही अहम लाइन और है जो बता देते हैं, बहुत लंबा नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे चढ़ाने की बात आई तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगा। जब सूली पे चढ़ाने के लिए जा रहा था तो हुआ ये कि अल्लाह ने, क्योंकि एक फरिश्ता तो उनके साथ रहता ही था कंटिन्यू, ठीक है, बस अल्लाह ताला ने तुरंत उस फरिश्ते को हुक्म किया, वो फरिश्ता ऊपर में उनको उठा लिया, इस पूरे ऊपर में। और अब तो साइंस प्रूफ कर चुका है कि ऊपर में तरह तरह का ग्रह है जहां जिंदगी भी बच सकती है। आधा रिसर्च तो पूरा करीब हो ही गया है, चांद पर, मंगल ग्रह पर और भी ग्रह सबका खोज हो रहा है। तो और कुरान में तो पहले ही कहा जा चुका है कि ऊपर में ग्रह ऐसा है, अब उसका नाम अलग है लेकिन वो है, जिंदगियां हैं ऊपर में। आदम और हव्वा ऊपर में ही थे। तो ईसा मसीह को ऊपर में उठा लिया गया। अब ये जो था जो उनको पकड़े हुआ था वो चिल्लाने लगा गया, मतलब अपने सीनियर के पास, कि ये तो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। कहा कौन ऊपर चला गया? क्योंकि जो कहाने गया था, जो गिरफ्तार किए हुआ था, उसका शकल सूरत जिस्म सब कुछ अल्लाह ने चेंज कर दिया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का कर दिया था। उसका अपना चेंज हो गया हुलिया, कुछ नहीं था अपना। अब लोग समझने लगा कि अच्छा यही है ईसा मसीह, ये सूली पर चढ़ने के लिए, बचने के लिए ऐसा मतलब हरकत कर रहा है। पकड़ा, उसको सूली पे चढ़ा दिया। ठीक है, ईसाई इसलिए, क्योंकि ईसाई के पास अब कोई नबी तो आया नहीं, कोई फरिश्ता तो आया नहीं कि बता इस पूरी कहानी को। अब 570 साल के बाद पैगंबर मोहम्मद पैदा होते हैं, वो भी कहाँ? मक्का में, जो कि ईसाई नहीं होते हैं, जो कि यहूदी नहीं होते हैं। ठीक है, उन पर ये बात उतरती है, उनको ये बताया जाता है कि ईसा मसीह जो है वो मेरा पैगंबर, यानी अल्लाह कहता है कि मेरा वो पैगंबर है और मैंने उसके साथ ऐसे ऐसे किया। तो अब ये पाठ पैगंबर मोहम्मद को खबर दी गई। अब ये खबर ईसाई मान के अपना जो यकीन है उसको करेक्शन कर ले, या फिर जो वो मान रहा है कि ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया उसको मानता रहे। लेकिन सूली पे चढ़ा दिया गया अगर वो मान रहा है तो फिर ईसा मसीह के इतना करामाती होने का क्या मतलब है? लोगों के मन में शक पैदा करता है कि जो मुर्दे को जिंदा करता था, जो दूसरों को जिंदगी देता था, वो अपनी जिंदगी खुद नहीं बचा सका, उसकी खुद हिफाजत नहीं कर सकता, जो
जो अल्लाह के नाम पर सब कुछ करता था, लोगों की जिंदगी देता था, बख्शता था, वो अपनी जिंदगी नहीं बख्श पाया, उसका रब कितना कमजोर है कि उसको नहीं बचा सका, ये शक पैदा करता है, ये सवाल पैदा करता है। और अल्लाह का इंतजाम पहले से ऐसा था कि अल्लाह ने तो सवाल ही नहीं होने दिया। लेकिन ये सवाल तो खुद ईसाइयों ने, और ईसाइयों की गलती इसीलिए भी नहीं है कि अब वो करे क्या, इंसान की तो कोई हद वैसी है नहीं। हाँ, अगर उनके 12 और जो चेले थे, अगर वो चाहता तो वो अल्लाह से, चूंकि जिस मकाम पे उसमें से कुछ चेला पहुंचा हुआ था, वो चाहता तो वो इस बात को पूरी तरह से पुष्टि कर चुका था, कर सकता था। बाद में कुछ लोगों ने ख्वाब में ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसमें बताया गया कि मैं मरा नहीं हूं। तो देखिए, तो ख्वाब की बात पर लोगों को उतना यकीन नहीं ना होता है, या उसको लोग ठोस नहीं ना मानते हैं। बहरहाल अब ईसाई की मर्जी है कि माने चाहे ना माने। कुरान ने क्लियर कर दिया है कि ईसा मसीह को किसी ने सूली पे नहीं चढ़ाया, ईसा मसीह को अल्लाह ने आसमानी दुनिया में बुला लिया। अब ये अलग बात है कि मुसलमान, यानी ये हदीस में आता है, मुसलमान लोग मानते हैं, ईसाई लोग भी कुछ मानते हैं कि ईसा मसीह फिर से आएंगे, है ना। अब आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने सोचा था कि अल्लाह ताला से पूछूंगा, लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम में मैं लगा था, तो मैं सोचा कि बाद में पूछ लेंगे, ये अभी उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, है ना। तो जब बातचीत हो ही रही है तो बाद में पूछ लेंगे। तो फिलहाल अभी कुछ वक्त के लिए बातचीत अभी हमारी बंद है। जो कुछ काम में हम लगे हैं, जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से मेरा सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ों के लिए रुका हुआ है। अब ये हमारा और अल्लाह का मामला है, ये आप लोगों के जानने की बात नहीं है। तो फिर से इंशाल्लाह सब स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम आपसे फिर आगे हैं, बात को यहाँ पे बढ़ाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपको जो चमत्कार, करामत, मुअज्जा के बारे में जो बताया, तो ये एक चीज पूरा उसका खुलासा तो मैंने बता दिया कि पहले से ये अल्लाह के प्लानिंग में था, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने फिर से उनसे अमल कराया था, रोजा रखवाया था और कुछ दुआ भी। देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की बात पर मुझे एक बात याद आ गई कि अगर किसी के पास फर्मा बरदार जिन है, एक जिन, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है अल्लाह के सिवा, दुनिया की कोई ऐसी प्रोसेस और ताकत नहीं है जो उस इंसान को मार सके। वो जिन उठा को उस इंसान को जहां चाहेगा उठा के गायब कर देगा उसको। न उस पर आपकी मिसाइल, बंदूक, ठीक है, ये सारी चीजें कुछ नहीं करेगी। प्लस वो जिन जिसको चाहे जहां उठा के ले जाए, जो चाहे सजा दे दे उसको, जाके अमेजोन के जंगल में जाके छोड़ देगा, वो अपने आप मर जाएगा। समझ रहे हैं? अमेजोन के जंगल का नाम तो जरूर आपने सुना होगा। कुछ भी कर सकता है, वहां तक आप सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी ताकत से आप वाकिफ ही नहीं है। अरे जब बिल्किस का 100 टन का और 50 टन का जब तख्त को उठा के ला सकता है, तो आप क्या सोच सकते हैं? आपको तो आज तक लोग मिला वो मिठाई मंगा के खिलाने वाला, अंगूठी और क्या कहते हैं कि पत्थर मंगा के देने वाला, तो इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। उसके अलावा आपको मिला होगा या सुने होंगे वैसे लोग जो 2 पैसा 100 पैसा आपसे वसूलते रहते हैं, आप पर डिपेंड रहते हैं। वैसा लोग नहीं मिला है ना, वैसा लोग मिलता भी बहुत कम है, वैसा लोग सबसे मिलता भी नहीं है ना, आसानी से मिलेगा क्यों? तो बेताज बादशाह है ना, वो दुनिया का मजा लेना चाहता है। दुनिया का मजा लेने के लिए जरूरी है
कि झोल झाल से दूर रहे, दुनिया के लोगों से छुपा रहे, ताकि वो सुकून इत्मीनान से कहीं भी घूम सके, रह सके, इबादत कर सके। उतना पावरफुल इंसान अगर मिल भी जाए तो आपको वो एहसास नहीं कराएगा अपनी पावर का, क्योंकि अपनी पावर का एहसास करा के मुसीबत मोल कौन लेने जाएगा। मुसीबत है ना, लोगों की जरूरतें कम तो है नहीं, ख्वाहिशात कम, जरूरत तो है मगर ख्वाहिशात जरूरत से ज्यादा है। तो जब एक जिन ऐसा कर सकता है तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक फरिश्ता तो कंटिन्यू था, वो तो अल्लाह ताला उसको जो हुक्म देता दिए हुआ था वो करता ही था। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का वो फरिश्ता, वो तो उसके लिए एकदम माने मामूली सा काम था ईसा अलैहिस्सलाम को उठा के कहीं भी ले जाना, फिर उनको फांसी दे देगा। मगर ये बातें वही समझ सकता है जो रूहानी लाइन का इंसान है, जो वहां तक पहुंचा हुआ। जो अभी रास्ते में है, अधूरा है, उसकी बात मैं नहीं करता हूं। जो इस लाइन का पूरा है मैं उसकी बात करता हूं। तो चलिए, मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बता दिया, यानी कि जो करामत से रिलेटेड मामला था। करामत माने से रिलेटेड एक तो वो इख्तियारी होता है, दूसरा गैर इख्तियारी जो होता है, यानी कि जिसमें इख्तियार नहीं होता है बंदे का। तो अब उसमें एक चीज मैंने आपको बता दिया था, यकीन, और दूसरा हिस्सा दुआ का होता है। जैसे एक बार कुछ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को ऊपर से खाने के लिए आता था, जिसको मनसलवा लोग बोलते हैं, तो मेरे लिए भी आप मंगा दीजिए, चूंकि मेरे नबी हैं आप, हमारी ख्वाहिश है ऐसा। उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम ईमान ले आएंगे, कुछ लोग ईमान वाले थे तो कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारा माने ईमान और मजबूत हो जाएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी खातिर अल्लाह से दुआ किया। तो चूंकि अब ये ईसा अलैहिस्सलाम के का इख्तियारी नहीं था, ये उनके बस में नहीं था कि ऊपर से जितने लोग थे, हजारों की तादाद में थे, उन सबको खिलाना, वो भी उन लोगों की ख्वाहिश थी कि ऊपर से खाना आए। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया अल्लाह से, अल्लाह ने कहा कि ठीक है, हम ऊपर से खाना नाजिल करेंगे, मछली और रोटी। तो लेकिन उसके बाद अगर कोई बदला, कोई अल्लाह पर से बदला, उसका यकीन अगर बदला, मुकर गया, यानी मान ले मैंने आखिरत, अल्लाह पर से भरोसा, ईसा अलैहिस्सलाम पर से भरोसा उसका उठ गया, नहीं है, तो फिर उसको मैं दोगुनी सजा दूंगा। यानी ऐसे आम तौर पे अगर गुनहगार होता सजा देते, उसे दोगुनी सजा देंगे उसको। और फिर मछली और रोटी सब लोगों के लिए ऊपर से आया, आसमान पर से, सब लोग खाया। तो ये जो दुआ वाला मामला है, ये तमाम मोमिन को मिलता है, ठीक है। ये दुआ का हिसाब किताब ये चीज है कि ये आम है, इख्तियारी नहीं होता है, बंदा रिक्वेस्ट करता है, अल्लाह से दुआ करता है। और चूंकि बंदा अगर अल्लाह का महबूब हो चुका है, अल्लाह उसको अपना खास बना चुका है, तो अक्सर दुआएं उसकी कबूल हो चुकी होती है। कुछ दुआओं में वक्त लगता है, इसलिए कि वो चूंकि दुआ खास होती है और उसका बहुत लंबा फायदे से और नुकसान से जुड़ा मामला होता है, इसीलिए उसमें वक्त लगता है, और वो भी दुआ अपने वक्त पे पूरा हो जाता है। और जो छोटी मोटी होती है, जिसको बस वक्तियत जिसको बोलते हैं, उसका बड़े फायदे नुकसान से मतलब नहीं है, तो वो तुरंत हो जाती है। अब मान लीजिए कि किसी को बच्चा नहीं है और शादी भी नहीं किया है, और वो बच्चे के लिए दुआ कर रहा है अल्लाह से, तब क्या होगा? पहले शादी होगी, फिर उसके बाद 9 महीना का प्रोसेस गुजरेगा, तब होगा। तो उतना तो टाइम लेना ही लेना है, आज का आज तो हो नहीं जाएगा। लेकिन अभी भूख लगी है, वो तड़प रहा है, मर रहा है, बेहोश हो रहा है, और दुआ कर रहा है खाने के लिए, तो क्या लगता है आपको कि 9 महीना के बाद आएगा? बच्चा वाला प्रोसेस इसमें लगेगा नहीं, खाना उसको अभी चाहिए, अभी मिलेगा। यही हाल है दुआ का। बंदा इसमें फर्क नहीं कर पाता है, बंदे को हर चीज आज चाहिए, अभी का अभी चाहिए। काम ऐसा नहीं करेगा कि अभी का अभी हो जाए, मगर दुआ में तो कुछ लगता नहीं है, जबान हिलानी है तो इसलिए अभी का अभी चाहिए।
जबान हिलाने से पहले भी बंदे को उस लायक बनने के लिए एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, तब सिर्फ जबान हिलाने पे काम हो जाता। बहरहाल अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए अगर आप चाह लें, ठान लें, तो मैंने जो कोर्स तैयार किया है, जो प्रोसेस किया है आपका, वो 3 साल में अगर आप 100% फॉलो करते हैं तो 3 साल में आपका सब कुछ हो जाएगा, करामत भी मिल जाएगी और आप खास भी हो जाएंगे। मगर 3 साल सख्ती से उस पर अमल करना होगा। थोड़ा सा उसमें अगर थोड़ा कोताही उताही किए, कुछ गड़बड़ी कर लिया, तो मान लीजिए कि 5 साल हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 5 साल में आपका हो जाएगा, अगर आप अपनी तरफ से ज्यादा कुछ कोताही नहीं करें तो। अहमियत दें। इतना कोई आज तक किसी किताब में नहीं बताया कि कितना टाइम लगेगा। सब ने यही कहा है कि पूरी दुनिया की हर चीज, हर ख्वाहिश छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई ख्वाहिश नहीं छोड़नी है। बस एक ख्वाहिश पकड़ लेनी है कि मुझे अल्लाह का खास बंदा बनना है। बाकी आप कोई जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई और जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसको करते रहिए। बस अपनी ज़हन को अल्लाह के तरफ, दिमाग को ले जाना है और 1-2 घंटा का वक्त अल्लाह की इबादत के लिए निकाल लेना है, एक्स्ट्रा इबादत के लिए, रात के लिए। इतना कर लिया तो हो जाइएगा। हमारी तरह आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ख्वाजा गरीब नवाज की तरह भटकना नहीं होगा। अपना देश छोड़ के उस्ताद की तलाश में, मुजाहिदे में जंगलों जंगले, पहाड़े पहाड़े नहीं जाना होगा, गौस पाक की तरह नहीं भटकना होगा, बल्कि जहां है वहीं से। लेकिन हाँ जनाब, ख्वाहिश तो चाहिए तगड़ी, क्योंकि जब दुनिया के झमेले में जब आप रहेंगे और सोचेंगे कि आराम से हो जाए, तो आपकी ख्वाहिश को ये दुनिया बनने ही नहीं देगी। जिस माहौल में रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, आपकी चाहत और ख्वाहिश उसी टाइप की बनती रहेगी। और जब उसी टाइप की बनती रहेगी तो आसान काम को भी आप अंजाम नहीं देंगे। यही होता है। और जिसकी ख्वाहिश जबरदस्त होती है वो सब चीज को छोड़ के पा लेता है। अगर आप अपनी ख्वाहिश को जबरदस्त बनाते हैं, उसको हवा देते हैं, उसको जोश देते हैं, उसको तक़वियत देते हैं, उसको क़ुव्वत देते हैं, उसको पावर देते हैं। उसको पावर देने का तरीका क्या है कि कुरान पाक को कम से कम समझकर सुनिए, मोबाइल में ट्रांसलेट उसका सुनिए, कम से कम 15 मिनट रोज उसको सुनिए तर्जमा के साथ। मेरी एक वीडियो रोज कम से कम देखिए। और कोई भी ऐसे सूफिया इकराम की वीडियो, ऑडियो जो आपको अल्लाह से जोड़े, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपके अंदर जोश पैदा कर सके, जो आखिरत की सोच पैदा कर सके, वैसे वीडियो को आप, ऑडियो को देखिए और सुनिए। हदीस पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कहूंगा कि हदीस मोटी मोटी किताब है और हदीस को इस तरीके से लिखा गया है कि आम आदमी के समझ में जल्दी तो आता नहीं है, खासुल खास लोग समझते हैं उसको। ठीक है, तो जितना फायदे वाली जो बात है बस उतने से लगे रहिए, उसमें वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अगर ये सब काम में 1 घंटा आप लगा लेते हैं, 1 घंटा सुनते हैं, ऑडियो वीडियो सब लेकर, या किताबें ही पढ़ते हैं, है ना, कोई जो आपको मोटिवेट कर सके, वैसे किताबें हैं, इमाम गजाली की किताबें हैं, मुकाशफतुल कुलूब भी है, किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल जिस भी तरीके से वो अपने आप को मोटिवेट रखना है। अगर मोटिवेट रखेंगे तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप कामे तक उलझे रहेंगे, ज्यादा नहीं उलझेंगे। आपका जो काम बेवजह जो आपका दिमाग उलझा रहता है, वक्त उलझा रहता है, वहां से आप वक्त को और दिमाग को बचा के अपना इबादत की तरफ लगाएंगे, अल्लाह की तरफ लगाएंगे। इतने तो करना है। इतना करने अगर आ गया
तो आप दुनिया में रहकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आज की दुनिया में तो दुनिया बहुत हसीन और खूबसूरत हो गई है, लोग को टाइम का पता ही नहीं चलता, इतना बिजी हो गया। एक जमाना था कि लोगों के पास टाइम ही टाइम हुआ करता था, टाइम ही नहीं पास होता था, खेती बाड़ी जानवर के अलावा और कोई काम ही नहीं हुआ करता था। उस जमाने में लोग दुनिया को छोड़ देते थे, सोचिए, कहते थे कि दुनिया अपनी तरफ खींचती है। उस जमाने में, यानी उस जमाने में आबादी में रहना आज के जंगल में रहने के बराबर है। इतनी कम आबादी थी कि आबादी के बीच में भी रहते थे, आज के हिसाब से वो जंगले में था, तभी भी लोग जंगल में रहते थे उस आबादी को छोड़ के। और मैं तो कहता हूं कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, बस आपको इबादत के लिए अपना एक कमरा फिक्स कर लेना, ठीक है। और अगर शुरू में अगर आपके पास एक कमरा न हो, एक ही कमरा हो जिसमें मियाँ बीवी बच्चे रहते हो, तभी भी अगर मस्जिद हो तो मस्जिद में इबादत कीजिए, नहीं कमरे में करते हैं तो कमरे में भी कर सकते हैं, मुवक्किल वाला छोड़ के बाकी सब अमल हो जाएगा उसमें। मुवक्किल वाला जब करेंगे तो उसका इंतजाम कर लीजिएगा। तो चलिए, हम आपको इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आपको करामत के बारे में खुल के पूरी बात बता सकूं कि दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े और समझने की जरूरत नहीं पड़े, आपका इल्म अधूरा नहीं रहे, आपका इल्म अधूरा नहीं रहे, आपका इल्म पूरा हो जाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैं बहुत कुछ बता के आपको आपकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश किया हूं और इल्म में इजाफा करने की कोशिश किया हूं। अब मैं आपको बताता हूं सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन पर जो हुकूमत थी, उसमें जो अमल उन्होंने जो किया था वो उनका इख्तियारी था। ऐसे उनका तमाम चीज इख्तियारी था और तमाम चीजों में कुछ चीज तो अपने वो वालिद से सीखे थे, ठीक है, दाऊद अलैहिस्सलाम से, और कुछ चीजें अल्लाह ताला ने इनको स्पेशल दिया था। लेकिन वो स्पेशल जो दिया था वो इनके मांगने पर दिया था, उसमें इनके ख्वाहिश को दखल थी, और ख्वाहिश को दखल थी तो इसलिए उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने वो तरीका बताया उनको, उन्होंने कोशिश किया, अल्लाह ने कामयाबी दिया और फिर वो हुकूमत किए। तो ये भी मिसाल है यहाँ पर। तो मैं आपको ये 3-4 नबियों से ये आपको मैंने बता दिया कि करामत मुअज्जा के कितने तरह से होते हैं। अब आप अगर आप चाहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह इख्तियारी मिले तो उसका एक प्रोसेस है। देखिए, बहुत सारे लोगों को वलियों में भी, सूफियों में भी, माने बिना इसकी चाहत के वो चीजें मिल गई है, यानी उनको करामत की ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी या उनके लिए कोई स्पेशल अमल किया था, अपने आप मिल जाता था। अब कैसे अपने आप मिलता था मैं बताता हूं, उसके पीछे राज, ये राज उनको बहुत कम पता चलता था जिनके साथ हुआ था। उसमें से कुछ लोगों को पता होता था कि इस वजह से करामत हो रही है, अब कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था, लेकिन मैं उसकी वजह बताता हूं। देखिए, सूफियों में अक्सर जो सूफी होते थे वो सूरह मुजम्मिल, सूरह यासीन, इसको कसरत से पढ़ते थे या पाबंदी से पढ़ते थे, रोज का रोज पढ़ते थे, ठीक है। उसमें सूरह जिन को भी पढ़ते थे, और कुछ लोग हाफिजे कुरान होते थे तो कुछ माने पूरा कुरान का अपना हिसाब किताब बैठाए हुए थे कि कब कितना पारा पढ़ना है। अब उसमें होता क्या था कि जहां पे ये पढ़ रहे हैं ये चीजें, उसमें से बहुत सारे मुसलमान जिन वो भी पढ़ते थे इसको। अब वो इनका पढ़ना, वो जिन के कान में गई आवाज, अब जो ये पढ़ता है बराबर, उसको इससे मोहब्बत है इस सूरह से, अब इसकी वजह से इसका पढ़ना उसको अच्छा लगता है, और जब इसको पढ़ना अच्छा लगता है कुरान तो वो उसके साथ रहने लगता है, दिल ही दिल में दोस्ती कर लेता है, दोस्त हो जाता है। अब क्या होता है, जब दोस्त हो गया कोई जिन, अब वो जिन की पावर का मामला है, अब वो जिन तनहा अकेला है तो कम काम करेगा,
अगर वो जिन लश्कर में है, मान लीजिए कि वो जिनों का बादशाह है और लाखों करोड़ों उसके पीछे लश्कर है, फौज है, और मान लीजिए कि कोई सूफी के साथ वो दोस्ती हो गई, उसकी लग गया, उस सूफी को पता भी नहीं है कि कोई जिन मेरा दोस्त हो चुका है। अब होगा क्या कि ये सूफी के मन में, अब यहां पर अब दो तरह से मामला होता है। अगर ये सूफी के दिल को किसी ने दुखाया, बस ये जिन उसका नुकसान पहुंचा देगा। अगर इस सूफी को किसी ने खाना खिला दिया, अच्छा से पेश आया, सूफी ने उसको दुआ दे दिया कि जा अल्लाह ताला तेरे रोजी में बरकत दे। अभी बोलना है कि ये जो जिन है वो अपना फौज उधर ट्रांसफर कर दिया और जो है उसका सेल होना शुरू हो गया। इस तरह से वो बरकत होना शुरू हो जाता था और वो सूफी को इस बात का इल्म भी नहीं होता था। ये एक तरीका हो गया। कुछ सूफियों के साथ ऐसा होता था। अब कुछ सूफियों के साथ क्या होता था कि वो जो जिन है वो हुक्म करने वाला मिजाज अगर रखता है तो वो उसके दिल दिमाग को पकड़ लेता था। उसको पता नहीं चलता था कि मुझे कोई पकड़ लिया है ना। जिन जब पकड़ लेता है तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, अब कुछ लोगों को पता भी चलता है, ये भी बात है। तो जिसको नहीं पता चला पकड़ लिया, अब पकड़ के उसकी जबान से वो जिन बात कर रहा है, दुआ या बदुआ दे रहा है, तकरीर कर रहा है, ये बात हो रही है। और तरह तरह से चमत्कार वो कर रहा है। और जब बाद में जब वो हट जाता है तो अब ये सूफी को लगता है कि आखिर ये हो कैसे रहा था, इतना साफ तो हम बोलते नहीं है, इसे बोल कैसे रहे थे, ये सब हो कैसे रहा है। तो चूंकि वो सूफी अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह की इबादत में रहता है, तो वो ये समझ जाता है कि ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। चूंकि प्रोसेस उसको नहीं पता है, रीजन कॉज नहीं पता है उसको कि कैसे से कैसे ये प्रोसेस हुआ है। मेरे कुरान पढ़ने से वो जिन कुरान से मोहब्बत करता था, फिर वो जिन आया, फिर वो जिन ऐसे किया, ये प्रोसेस से वो ना वाकिफ है। वो सिर्फ ये समझता है कि अल्लाह हमसे खुश हो गया है और ये अल्लाह के तरफ से हो रहा है। तो वो अल्लाह से और मोहब्बत करने लगता था वो सूफी, और अपनी इबादत को बढ़ा देता था। एक चमत्कार का पहलू होता था। ठीक है, आप लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ आज के डेट में इसीलिए नहीं होता है कि कुरान तो पढ़ते जरूर हैं मगर कसरत से नहीं पढ़ते हैं, सिस्टम से नहीं पढ़ते हैं, दिल में गंदगी ज्यादा है, हसद कीना ज्यादा है, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत नहीं है, रियाकारी बहुत है। इबादत करते हैं तो चाहते हैं कि आपकी कोई तारीफ करे, दुनिया में ही आप उसका फायदा जो है वसूल लेते हैं। नमाज बिना पैसे के पढ़ाते नहीं है, कुरान बिना पैसे के पढ़ाते नहीं है, सब चीज का मुआवजा दुनिया में चाहिए। तो भैया जब सब चीज का मुआवजा दुनिया में चाहिए तो फिर आपके साथ भी वैसा ही बिहेव होने वाला है, मुफ्त में क्यों आपको मिल जाएगा। इसलिए एक तो वो हो जाता था। अब दूसरा सुनिए कि अगर जिन मोहब्बत कर लिया, अब उसमें वो उसके सामने में जिन आता था, दिखाई देता था खुली आंख से, और उससे सलाम करता था, बात करता था, और फिर आम इंसान की तरह, और उसके बाद बताता था कि आप बताइए जो करना होगा हम आपके लिए कर देंगे, हम आपको पसंद करते हैं। तो अब ये सूफी को ये प्रोसेस पता हो गया कि कैसे कैसे हो रहा है ना। तो अब ये सूफी का इख्तियारी चमत्कार हो गया, क्योंकि इसको पता है कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इसका इख्तियारी हो गया। मगर ये जो चमत्कार जो इसके साथ हुआ, ये हो गया। इसको ये नहीं पता था कि हम इतना बार ये पढ़ेंगे तो इतना दिन में हो जाएगा, इतना बार पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसने इबादत किया, पढ़ा, हो गया। लेकिन मैं आपको बताया कि कुरान की सूरह और वो तलफ्फुज, अच्छे तलफ्फुज के साथ, अब ये काम तो आलिम और हाफिज ही ज्यादातर कर पाते हैं। ठीक है, और आज भी बहुत सारे हाफिज कुरान मुझे मिले कि जिसमें से किसी जिन की बेटी है तो कोई हाफिज कुरान जिन है। कई ठो हाफिज मुझे हाफिज कुरान मिले हैं जिसके साथ जिन रहता है।
उसने कोई अमल नहीं किया, बस वो कुरान शरीफ जिस वक्त मदरसे में पढ़ रहा था, बस उसके पढ़ने के जो अंदाज है, उसकी जो आवाज है, उसको पसंद आ गई, उसके साथ रहने लगा। ये चीजें हैं। तो ये चीजें बहुत सारे सूफियों के साथ हुआ, यानी उनको चमत्कार के लिए अलग से कोई अमल करने की जरूरत नहीं पेश आई, क्योंकि जो वो पढ़ रहे थे, है ना। अब मान लीजिए कि वो तो एक जगह रहते भी नहीं थे, कभी यहाँ पढ़ लिया, कभी 40 दिन यहाँ पढ़ लिया, कभी वहां पढ़ लिया, कभी वहां पढ़ लिया, हमेशा घूमते फिरते रहते थे। अब इस तरह से यहाँ का लश्कर, वहां का लश्कर। और एक चीज और बता दें कि हर जगह जहाँ इंसान पढ़ता है वहां का लश्कर अलग होता है जिन का। फिर जब जगह बदल जाने से जिन का लश्कर बदल जाएगा, यानी वहां से फिर अलग लश्कर ताबे हो जाएगा, फर्मा बरदार हो जाएगा। इसलिए जगह बदलने की जरूरत पड़ती है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बातें मैं किसी वीडियो में शायद नहीं बताया हूं, इसीलिए मैं बार बार बताता हूं कि मेरी सारी वीडियो देख जाइए, क्योंकि एक ही वक्त में सारी बातें याद नहीं रहती है, जब जरूरत पड़ती है तो बातें याद आती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी सारी वीडियो को आप देखिएगा, तभी जाके आपको ज्यादा और इल्म होगा और सटीक इल्म मिलेगा, कुछ छूटेगा नहीं, कोई सवाल नहीं रह जाएगा आपका। अब ये हो गया, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं रूहानी लाइन का जो तरीका था, जो चीज पाना था, जो सफर करना था, सब कर लिया, लेकिन मेरे साथ करामत नहीं हुआ। अब मेरा सवाल अल्लाह ताला से कि मेरा करामत कहाँ छूट गया। मैंने तो सुना था, पढ़ा था कि जो बंदा ही मंजिल तक पहुंच जाता है, जो चाहता है करता है। करामत ख्वाजा की नमाज बोले कि चौथे ही दर्जे पे मेरे यहाँ करामत शुरू हो जाती है, यानी उनके सिलसिले में है। तो आखिर वो करामत कहाँ चला गया? अब ये सवाल मेरा अल्लाह से रहा। तो रहते 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 वक्त पता चला कि करामत, तब मुझे जवाब मिला कि अल्लाह की तरफ से कि करामत कैसे कैसे होता था। ठीक है, तो मुझे जो मिला है वो बहुत बड़े बड़े सूफियों, और आगे तो नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपको अनपढ़ हो जाएगा, इसलिए। हाँ तो प्यारे दोस्त, मेरा जो चमत्कार यानी करामत वाला जो हिस्सा था, सारी रूहानी सफ़र होने के बाद भी मुझे वो नहीं मिला था। तो मेरा अल्लाह ताला से ये सवाल था कि आखिर ये चला कहाँ गया, करामत होता कैसे था, क्यों होता था। अब इसके पीछे जब मैं पढ़ा तो बहुत सारे राज खुलने लगे, चूंकि उस पर रिसर्च अलग से शुरू हो गया। खुलते गए खुलते गए खुलते गए, फिर एक वक्त ऐसा आया कि पास फेल का चक्कर लगते लगते कुछ पास किया, कुछ फेल किया, इस तरह से होता गया। छोटी छोटी चीज़ें मिलती गई, और इस तरह से होते 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 यानी प्रोसेस से गुजरते गए। अचानक कुछ नहीं हुआ है, बहुत वक्त लगा है इसमें, हर छोटी बड़ी चीज़ से होते हुए गुजरे हैं। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि मुझे वो अमल अल्लाह ताला ने अता किया जो लोहे महफूज पर आज के डेट में है, कि दुनिया के किसी किताब में नहीं मौजूद है, जो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया था। एकदम वही चीज़ें। अब एकदम वही चीज़ें कैसे हुई? तो मैं चाहता था कि ये चीज़ें दुनिया के लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि दुनिया का लोग यकीन भी नहीं करेगा, मजाक भी उड़ाएगा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि इससे एक नुकसान उन लोगों का हो जाएगा जो इल्म के तालिब हैं, जो सच्ची इल्म चाहते हैं, जो अल्लाह के राज से वाकिफ होना चाहते हैं। उनसे ये चीज़ें छूट जाएगी, उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। बाकी वो लोग जो जिनको यकीन नहीं है, जिनको शक होता है, जो गाली देंगे, जो मजाक उड़ाएंगे, उनके मुकद्दर में यही है, उसने यही हिस्सा लेना पसंद किया है, तो ये उनको मुबारक हो। और ये वीडियो चूंकि उनके तुफैल में गलत लोगों को हाथ लगेगी, मैं ये बना रहा हूं उसके लिए जो इल्म, सच्चे इल्म का तलबगार है। ये हक उसी का है, मैं उसी के लिए बना रहा हूं। अगर बाकी लोगों को ये हाथ लग रहा है तो वो अपना बदनसीबी इसके जरिए जाहिर करेगा, यानी ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये कितना बड़ा बदनसीब इंसान है ना। और यही चीज क़यामत के दिन और दुनिया में उसके खिलाफ
गवाह बन के खड़ा हो जाएगा कि तुमको जब हक बातें बताई गई थी तो तुमने उससे फायदा उठाने के बजाय उस पर शक किया था बेवजह का, उस पर तहकीक किया, रिसर्च नहीं किया, यकीन नहीं किया, तुमने शक किया, तुमने अपना हिस्सा यही चुना। बहरहाल तो मैंने दुआ किया, अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, वो नूर की शक्ल में आया था, बहुत बड़े रोशनी की शक्ल में, और उसने वो मुझे दुआ बताया। ठीक है। और जो अमल मैं पहले से कर रहा था, मैं उसको, कुरान शरीफ की आयत थी, उसको मैंने जब सुनाया तो उसने मुझे कहा कि ये तो एक कहानी है, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहाँ जहाँ वाक़या है उसी में से कुछ आयत को मैंने उठा लिया था, निकाल के और उसको पढ़ता था। तो वो एक कहानी थी, कहानी का हिस्सा था, टुकड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ये दुआ नहीं है, ये अमल नहीं है, और ये तो ये ऐसे है। तो उसने मुझे वो दुआ बताया, और फिर मैं, वो दुआ ख़ास है, वो अगर मैं आपको बता दूं तो चूँकि उसमें इतना इम्तहान से मुझे गुजारा गया उसके बाद मैं आपसे नहीं बता सकता हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि अगर वो दुआ हम आपको बता दें तो आपको यकीन ही नहीं होगा और आप उस पर अमल करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें इतने इम्तहान से मुझे गुजारा गया है, इतना वक्त देना पड़ा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, सब्र नहीं होगा। ठीक है। तो मैं आपके लिए फिर अल्लाह ताला से बातनी तौर पे मैंने वो दुआ और वो तरीका सब जो पहले मैंने रिसर्च किया था और बाद में भी रिसर्च करना शुरू किया, यानी जो मैंने किया था उसी को बाज़ाब्ता फिर क्या कहते हैं उसको, यानी दिमाग में हाजिर करके और लिखना शुरू किया, जो 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 कुछ मैंने तजर्बा किया था। तो फिर मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जिसमें आपको मेहनत कम करना पड़े और फल यकीनी तौर पे मिले। बहरहाल तो मैं आपसे यही बता रहा था कि सूफियों के दर्जात के बारे में बता रहा था। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप इसमें से हैं कि आपने पूरा रूहानी सफ़र कर लिया, ठीक है, अब लेकिन आपको चमत्कार नहीं मिला है, तो आपको, अगर आप मर्ज को शफा यानी बीमारी को ठीक करने वाला अगर पावर चाहते हैं, हर बीमारी को, कोई भी बीमारी हो, तो सूरह फातिहा वाला अमल आप कीजिएगा। मगर याद रखिए ट्रायल के नियत से नहीं करना है। जब आप सारा रूहानी सफर कर चुके हैं और तब आपको वो माने लास्ट इख्तियार करना है और लाइफ टाइम पढ़ना है। कामयाबी की गारंटी है, ये बात आप समझिए। शक बाल बराबर ना, चूंकि मेरा टेस्ट किया हुआ है, पहली बात। अब मैं आपको बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे वो इख्तियार दिया है, बहुत सारी चीजों का दिया है। अब आप यही से सोचिए कि मुझे दिल में आया कि मैं ये दुआ छोटी सी पढ़ूंगा तो अल्लाह की तरफ से एक नूर वाला फरिश्ता आएगा। अब ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ था। ये अलग बात है कि मैंने 60-70 किताब पढ़ा था अमलियात का, ठीक है, तो उसमें से मैंने क्या पढ़ा था? किसी किताब में बताया हुआ नहीं था, वो अल्लाह के चंद नाम है जो मैंने पढ़ा था बस। लेकिन मेरे दिल में आया कि पढ़ेंगे तो ऐसे होगा, पढ़ा, आया, हुआ। तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि अगर सूरह फातिहा वाला अमल करना है, मुवक्किल वाला, शिफा वाला, तो वो करना है तो करना है, ठीक है। ऐसे इसमें 6 महीने से लेके 2 साल के अंदर में कामयाबी मिल जाएगी। बाई दिवे उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो आप ये समझिए कि अल्लाह के आप बहुत खास हो चुके हैं। समझ रहे हैं? अब मसलहतन अल्लाह ताला अटका के रखे हुआ है, इसलिए अब आपको वहां पे सब्र से रहने की जरूरत है और अपना दिल दिमाग जो बाकी काम है उसमें लगाए रहना है, उसको जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। कामयाबी डिफिनिट मिलेगी। अल्लाह ताला कभी कभी बंदे को स्पेशल तौर पे आजमाता है। एक तो आजमाइश बंदे को सिस्टम के हिसाब से, जो दुनिया है उसके हिसाब से मिलती रहती है, वो अलग से कोई उसकी आजमाइश नहीं होती है। लेकिन जब अल्लाह का कोई खास बंदा हो जाता है
तो बिना सिस्टम के भी उसकी आजमाइश होती है। तो आजमाइश हो जाए तो टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन आमतौर पे 6 महीने से 2 साल में अक्सर को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको करना है तो करना है, छोड़ना नहीं है कभी भी। शुरू किया तो हमेशा करना है, वरना छोड़ने का इरादा है, ट्रायल करना है, कितना दिन में हुआ तो ठीक, नहीं करना है तो आपका यूं ही वक्त बर्बाद जाएगा। उससे बेहतर है आप नहीं करें। मेरा कोई भी अमल ट्रायल करने वाला नहीं है, मेरा कोई भी अमल ट्रायल करने वाला नहीं है, समझें। तो देखिए, मेरा कोई भी जो अमल है बताया हुआ, ये आजमाया हुआ है पूरी तरह से, ये आखिरी हद तक पहुंचा हुआ है, इसमें आजमाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो जो यकीन ब्लाइंड फेथ करेगा हम पे, मेरे रब पे, अपने आप पे, मेरी दुआ पे, वही इसको करेगा और करे। बाकी जो ट्रायल करने वाला है उसको इसकी इजाजत नहीं है, अगर करेगा भी तो उसको कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है। ठीक है, बाकी किताबों की तरह जैसे आप पढ़ेंगे, शमा शबिस्तान रजा है और भी है, मैंने सैकड़ों किताबें हैं मार्केट में, उसमें से जो उसको लिखा है वो खुद भी कहीं कहीं पे एक आध जगह इस बात का मैंने जिक्र किया। जैसे शमा शबिस्तान रजा को जो लिखा है, उसने खुद एक जगह मोक्किल वाला अमल के बारे में लिखा कि या अल्लाह का अमल दिया हुआ है 3 दिन का मोक्किल वाला, और क्या बताता है कि मोक्किल वाला अमल नहीं करना चाहिए। एक बार वो किया तो मोक्किल आके बताया कि तुम्हारा काम हो जाए, मोक्किल को ताबे करके क्या करोगे। ठीक है, तो वो खुद मोक्किल वाला अमल नहीं किया था, फिर भी उसमें कई ठो मोक्किल वाला अमल लिखे हुआ है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मिसाल तो कई गो है, लेकिन मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, खुद अपने से आप ढूंढिए। वो किताब की, यानी ये बताने के लिए कि किताब की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसमें वो अपनी प्रैक्टिकल को नहीं लिखता है, बस यहाँ से वहां से सब जगह से इकट्ठा करके किताबों से किसी की बातों से एक जगह जमा कर दिया। अब आप उसमें ढूंढते रहिए कि कौन सही है कौन गलत है, जिंदगी लाइफ ही में गुजर जाएगी, कभी सही अमल नहीं मिलेगा। ठीक, सही अमल तो उसी से मिलेगा जो सही कर चुका है, वही बता सकता है। हजारों अमल आप कर डालिए, कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक कामिल उस्ताद अगर मिल गया और उसने एक छोटा सा अपना प्रैक्टिकल चीज आपको बता दिया, तो उससे आपको बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनिए और कैच प्रैक्टिकल। तो कहने का मतलब है कि आपको मैंने ये बता दिया। उसके बाद सूर्य एक और है, चमत्कार बता रहा था कि अगर आपको नहीं मिला है, आप सारी रूहानी सफर कर चुके हैं, तो एक सूर्य आयतल कुर्सी का अमल चिल्ला मैं बता चुका हूं, सारी वीडियो देख जाइएगा। बेहतर है कि अगर आप इंडियन पाकिस्तानी हैं जिसकी जबान माने उर्दू है, और अरबी अगर बहुत अच्छी नहीं है, अरबी टू उर्दू समझ नहीं है, अरबी अल्फाज सही से अदा नहीं करने आता है, तो उर्दू वाला अमल कीजिएगा, उर्दू जो आयतल कुर्सी वाला है। ठीक है, और अगर अरबी अच्छी है, उसका ट्रांसलेट करने भी आता है, आप पढ़े हैं, तो आप अरबी वाला कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मैंने बता दिया है। उसको जब आप करेंगे तो वो शिफा के लिए स्पेशल नहीं है, शिफा के लिए स्पेशल सूरह फातिहा वाले में है। वो बाकी जो चीजें हैं, जैसे दुनिया में हुकूमत करना, हुकूमत को चेंज करना, कानून को चेंज करना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दिमाग को बदल देना, है ना, यानी दुनिया में तहलका मचाना है और अपना फायदा, बंदों का फायदा पहुंचाना। दुनिया में बादशाह लोग जुल्म कर रहा है या कोई और भी जुल्म कर रहा है, उस जुल्म को ख़त्म करना है, इसके लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। ये पावर आपको सिर्फ मैंने आयतल कुर्सी वाला अमल से आ जाएगा। ठीक, लेकिन फिर उसके लिए वही चीज़ है कि 40 दिन में, 80 दिन में, 100 दिन में नहीं आएगा। ठीक है, इसका
लिए आपको चिल्ला 100 दिन से लेकर, ठीक है, 100 दिन से लेकर और 2 साल तक का इसका मिकदार है। ये समझिए, इतना दिन तक तो आपको बेसब्रा बिल्कुल नहीं होना है, एकदम सब्र के साथ पढ़ना है, ये मान के चलना है। लेकिन अब उसके बाद सुन लीजिए कि लास्ट है ये आपका, इसके बाद किसी अमल की आपको जरूरत नहीं है, सब अमल कर चुके हैं, उसके बाद ये आखिरी तौर पे करना है। क्योंकि इसके बाद अमल करने का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री बनने के बाद आप जो है डीएम बनना चाहते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद आप क्लर्क बनना चाहते हैं, यही तो मतलब हुआ इसका। तो इसलिए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, मिलेगा इसी से, ये समझ लीजिए। अगर 2 साल के बाद भी नहीं मिला है तो अल्लाह ताला और खास आपको बनाना चाहता है, ये मेरा प्रैक्टिकल इसलिए बता रहे हैं। और मामला ये है कि चूंकि आपको बड़ी हुकूमत वाला मामला मिलने जा रहा है, तो अब किसको किसको आपका शिकार बनाना है, किसको नहीं बनाना है, उसी के तहत उसमें वक्त लग सकता है। 2 साल से अगर एबव बढ़ा तब, नहीं तो ये आपको माने ज्यादातर मामलों में आपको 100 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर और उसके बाद आपका 100 दिन में नहीं होता है तो फिर आप 2 साल का टारगेट तो हर हाल में पहले से लेके ही चलिए, तो कोई परेशानी नहीं हो अदा करने में, ठीक है। ये लास्ट तक का है, इससे मिलना है तो मिलना है, नहीं का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। अब रही बात, अच्छा, जिन लोगों को आज तक सही से बताया नहीं गया, बस 40 दिन का अमल कर लेना है, मुवक्किल आ जाएगा, ये सब मुवक्किल जो 40 दिन में आ तो जाता है मगर कोई काम नहीं करता है, वो आपसे बात भी नहीं करेगा 40 दिन वाला। 1-2 ठो अमल मैंने किया है, 50 ठो मुवक्किल वाला अमल किया है, छोटा बड़ा सब मिला के, जिसमें से आ जाता है, पहले दिन आ जाता है रहने, एक किसी अमल में 1 हफ्ता के बाद हर वक्त रहने लगता है, किसी अमल में 20 दिन के बाद, किसी में 40 दिन के बाद, लेकिन बात नहीं करता है। माने लगभग 2-3 चिल्ला गुजर जाता है, तब जाके वो बात करने लगता है, काम नहीं करता है। अब आगे की बात तो बताएंगे नहीं, तो मामला क्या होगा समझिए। इसलिए ये चीजें हैं, और अल्लाह ताला इतना बड़ा पावर आपको दे और आपकी आजमाइश भी ना हो, है, इतना बड़ा पावर दे अल्लाह और आपकी आजमाइश नहीं हो, बहुत जल्दी दे दे, क्या करेंगे जल्दी लेकर, क्या करना है, हैं? इसलिए तो भाई इतनी बड़ी ताकत पावर अल्लाह ताला आपको देगा, आपको चाहिए, और आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। आपकी जो चाहत है वो इंसानी फितरत के हिसाब से तो सही है, मगर हर चीज इंसानी फितरत के हिसाब से नहीं होती है। कुछ चीजों में जो टाइम लगता है उतना टाइम तो लगेगा ही, नहीं का कोई सवाल नहीं। चाहे आपको जितना हड़बड़ाना है हड़बड़ा जाइए। एक पेड़ आम का आप रोपिए और जाइए डेली की जो है ये फल देने लगे, तो क्या लगता है कितना दिन में फल देने लगेगा, सोचिए। वक्त लगता है, हर काम में अलग अलग तरह का वक्त लगता है। और आप दुनियावी हिसाब से भी उसको टैली कराइए। आप बीए आप में 3 साल देते हैं, एमए में आप 2 साल देते हैं, 5 साल तो आपका यूं ही निकल जाता है। क्या मिलता है? सिर्फ कागज का टुकड़ा, और दिमाग में जो बातें याद रहती है थोड़ी सी। पढ़ते तो बहुत हैं, इम्तहान में लिखते भी बहुत हैं, मगर याद जरूरत पे वो थोड़ी सही बात रह जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, बहुत थोड़ा सा। और एक कागज का टुकड़ा सबूत में मिलता है कि आप बीए पास हैं, एमए पास हैं, इससे ज्यादा आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। उसके बाद नाम और पैसा के लिए दर बदर चपलूसी करते हैं, कोशिशें करते हैं, एग्जाम देते हैं, तब जाके कुछ मिलता है। आप दुनियावी मकाम से ही अगर इसका तुलना कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि ये कितनी बड़ी चीज आपको मिलने वाली है, उसके हिसाब से आप दुनियावी में कितना आप मेहनत करते हैं तो कितना मिलता है, तो आपको ये तो आप खुशी खुशी आप उसको करेंगे।
कभी आप पीछे नहीं हटेंगे, कभी उबेंगे नहीं। उबते तो तब है जब आप कंपेयर उस 40 दिन से करते हैं। आप चाहते हैं कि हवा हवाई हो जाए, अल्लाह से मांग ही तो रहे हैं, तुरंत मिल जाना चाहिए। आप दुनियावी चीजों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि जो चीज के लिए आप टाइम दे रहे हैं, एक तो बहुत थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, बाकी काम के लिए आप पढ़ाई के लिए कितना टाइम देते हैं, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं, इसमें आप 1 से 2 घंटा टाइम देते हैं। डिग्री लेने के लिए आप 5 साल 7 साल लगाते हैं और इसमें 2 साल 3 साल ही लगाना है आपको, समझ रहे हैं। तो उससे भी आप इसका कंपेयर करेंगे तो आपको आगे का मेहनत आसान हो जाएगा। चलिए, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जीन वाला जो अमल करना है, ये जो सूरह फातिहा है और आयतल कुर्सी है, ये वाला जो अमल मैंने जो बताया है, इसमें जीन नहीं, इसमें फरिश्ता आता है। इतनी साफ सुथरे तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर फिर भी अगर आप फायदा नहीं उठाएं तो आप बड़े वाले बदनसीब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल, सूरह जीन और सूरह मुजम्मिल का अमल जो मैंने बताया है, उसमें जो मोकिल आएगा वो जीन आएगा, ठीक है। तो जिन की ताकत अलग होती है, जिनका काम अलग होता है, जिनकी सोच अलग होती है, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, तो फिर हम दूसरे वीडियो में फिर इसका जिक्र माने कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे, जिक्र करेंगे कि जिन के बारे में सूरह मुजम्मिल और इसके बारे में, ठीक है ना। आज हम सूरह जिन के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और बहुत बार कट भी चुकी है, सबको जोड़ना भी है। कुछ मोबाइल में स्पेस का प्रॉब्लम आता है तो शो करता है मोबाइल पे कि नॉट एनफ स्पेस, अब उसके लिए वीडियो कट ऑफ हो जाता है। तो चलिए, चूंकि अब मोबाइल मेरा कम दाम का है तो कम स्पेस है इसमें, है ना। तो अभी शुरू ही किया है, तो जहाँ से जैसा था उससे हमने शुरू कर दिया है, जब जैसा तब तैसा। चलिए ठीक है, तो फिर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पे चर्चा करेंगे। हमने इसमें करामत के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। और आपसे बता दें कि सूरह मुजम्मिल और सूरह जिन में जब जिन का अमल कामयाब आपका हो जाता है तो इसमें भी जो करामत आपको मिलती है वो इख्तियारी ही होता है, आपके इख्तियार का होता है। जब चाहे करे, जैसे चाहे करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि हर कर्म, हर काम की का सवाल आपसे होगा क़यामत के दिन। इसलिए जब भी कोई चीज़ इख्तियार दिया जाए तो उसका सही इस्तेमाल करना है। गलत इस्तेमाल कीजिएगा, इसका जवाब आपको क़यामत के दिन देना पड़ेगा, अब पकड़ हो जाएगी, और जिसकी वजह से हो सकता है कि गिरफ्तारी आपकी क़यामत के दिन हो जाए। इसलिए जब भी पावर का इस्तेमाल करें तो यह सोच के कि आप अल्लाह के एक मुंशी हैं, है ना, एक खलीफा है, आपको अल्लाह को जवाब देना है, ठीक है। इसलिए काम ऐसा करें जिससे अल्लाह आपका खुश हो, आप भी खुश हो और दुनिया के लोग भी खुश हो। चलिए, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आपके लिए वो तमाम इल्म जो अल्लाह ने मुझे अता किया है मैं आप तक पहुंचा सकूं, सही सही तरीके से, अच्छे अंदाज में, जिसको आप जज्ब कर सकें, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकें, जिसको आप पी सकें, उस अंदाज में। और मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी समझ को बढ़ाए और ये समझ दे कि कौन काम कितना ज़रूरी है, इसकी समझ आपको अता करे कि ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट काम छूटे नहीं। चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कोई नए नॉलेज, नए इल्म के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।